Anshita, we can start the session, I guess, right? All right, very warm good morning to all of you. I, Dr. Anshita Gupta Soni, welcomes you all on the behalf of entire team of Chhattisgarh Society of Pharmaceutical Science, CGSPS. We are glad to share that on the occasion of National Youth Day, we are organizing a workshop on the theme of channelizing youth power for national building, in which two of the eminent speakers will be sharing their views with all the budding pharmacists of our state. This is a small initiative taken by our society CGSPS for nurturing, exposing, and accomplishing our budding pharmacists with new ideas and perspective toward their life and profession. I hope that this workshop will also provide our pharmacists to interact, acquire, and acquaint themselves during this pandemic situation and keep their morale high. Before moving ahead, I most respectfully invite the Honorable President of CGSPS for his opening remarks. Over to you, Ravi sir. Hello, everyone. Good morning. Am I audible? Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good everyone. morning, sir. So, good morning, good morning, good morning. Yes, sir. Yeah, good morning. And first of all, let me thank Dr. Anshita Soni for organizing such a beautiful celebration. And I welcome Saraswati Prasad Mishra sir and Dr. Vikas Chandrakar sir as well, who is the eminent speaker for this today's session. I welcome both of you, sir. So, on behalf of Chhattisgarh Society of Pharmaceutical Science, आप सभी लोगों को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं। सर, स्वामी विवेकानंद जी की मुझे आज एक बात याद आती है, और जो कि मेरे को लगता है कि हमारे मन में हमेशा से ये डाउट रहता था कि दिमाग की सुने कि दिल की। तो उन्होंने कहा था अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, कि हमेशा दिल की सुनो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आप सबका बहुत बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कि हम दिमाग की सुने कि दिल की, तो प्लीज़ अपने दिल की सुनिएगा और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अंशिता। हेलो, सरस्वती, आप सुन सकते हैं मुझे? Yes, sir. You are audible. ओके ओके। सो आई गेस अंशिता मैडम शायद कहीं बिजी है, या मे बी शी हैज़ बीन टेकन अप। अंशिता मैम, आप हैं वहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके मैम। Actually, there was some network problem. Just a minute. Now I am audible to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so without wasting much of the time, I would like to invite our first speaker, Sri Saraswati Prasad Mishra sir, who is a young Kannavasa, thinker, motivational speaker, and a great YouTuber. And surely he does not need any introduction. So without wasting much of the time, I request sir for his motivational speech. Saraswati sir, over to you, sir.
Thank you, madam. Thank you for this generous introduction. And I'm very much thankful to CGSPS for inviting me as a speaker. And happy Youth Day to all of you who are present here. जैसे हम सभी को पता है कि हम यूथ डे मनाते हैं एज एन बर्थडे ऑफ हमारे स्वामी विवेकानंद। तो बेसिकली आज जो मेरा सेशन होगा वो सेशन होगा इस चीज पे कि स्वामी विवेकानंद का कहना था तब तक चलते रहो, उठो चलो, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको गोल्स अचीव नहीं हो जाता। गोल्स अचीव करना सबके लिए सबका एक एम रहता है, सक्सेस पाना सबके लिए एक एम रहता है, बट सक्सेस पाने का तरीका सबको नहीं पता होता। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इसी को कि किस तरह से हम किसी चीज में अगर हमको सक्सेस चाहिए तो कैसे मिल सकता है। आप सब रेडी हैं इसके लिए? एक बार बस अगर आप रिप्लाई करें तो समझ आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट 3 रूल्स फॉर सक्सेस। बेसिकली 3 रूल्स मैं बताऊंगा जिसके बेसिस पे किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो ये 3 रूल्स तो चाहिए ही चाहिए। ये क्या रूल्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम जैसे अंशिता मैडम ने बताया, मैं सरस्वती प्रसाद मिश्रा हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, बहुत जगह पे मैं स्पीचेस भी देता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो चलते हैं, आज का सेशन ज्यादा लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अब अगर मैं किसी को पूछूं, यहाँ पे हम यहाँ 100 लोग हैं, किसी को मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो हर इंसान का अपना एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगा। हर इंसान अपने तरीके से सक्सेस को डिफाइन कर रहा होगा। जो सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए है, हो सकता है वो सक्सेस का डेफिनेशन मेरे लिए ना हो, और जो सक्सेस का डेफिनेशन आप जिसके कारण जी रहे हैं वो उस तरह से शायद मैं ना जीता हूं। बट सक्सेस के डेफिनेशन भले ही अलग हो सके, लेकिन जब हम सक्सेस की बात करते हैं, हम उनको बेसिकली उसको अगर डिफाइन करें तो क्या है, इज अ वर्ड दैट वी ऑल डिफाइन डिफरेंटली। सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसको हम सब अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हम सब में, हमारे लिए भले ही डेफिनेशन कुछ भी हो, एक चीज उसमें कॉमन रहती है। वो क्या? वी ऑल वांट टू हैव इट। हम सभी को सक्सेस चाहिए। किसी को फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, किसी को पर्सनल लाइफ में सक्सेस चाहिए। जो भी टाइप का सक्सेस चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ का हो, पर्सनल लाइफ का हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप में हो, हर जगह पे जब सक्सेस की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले। जो भी हमारा डेफिनेशन है सक्सेस का, डिफाइन हम अलग तरीके से करते होंगे, लेकिन हम सब एक तरीके से उसको चाहते जरूर हैं अपने लाइफ में। अगर हम चाहते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमको उसको अचीव कैसे करना है। वी मस्ट नो हाउ टू अचीव इट। बस चाहने से नहीं होगा। मैं चाहूं सक्सेसफुल होना और मुझे पता ही ना हो कि सक्सेसफुल मैं कैसे हूं, तो फिर मैं चाहते ही रह जाऊंगा, सक्सेस कभी आएगी। तो आज के सेशन में जैसे मैंने बताया कि मैं 3 रूल्स बताऊंगा सक्सेस के। उससे पहले हमें जानना होगा कि क्या 3 चीजें हैं जो चाहिए हमें सक्सेसफुल होने के लिए। इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड करेगा मेरे 3 रूल्स। क्या 3 चीजें हैं जो हमें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? 3 चीजें हैं। आप किसी भी फॉर्म का सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, किसी भी तरीके का सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, उसमें आपको 3 चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। 3 चीजें होती हैं। अब ये 3 चीजें हैं क्या? वो 3 चीजें हैं कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। ये 3 चीजें हैं जो आपको अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें आपको चाहिए। एक है कंसिस्टेंसी, एक है परसिवरेंस, और तीसरा है वी शुड स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये है क्या? कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको उस चीज को रेगुलरली चीजें करती रहने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज किसी चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, आज रुक जाए, आज कर लिया और कल रुक जाते हैं, फिर परसों करते हैं, फिर रुक जाते हैं। इस तरह से आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना डेडिकेशन फुल्ली उस काम पे देना पड़ेगा जिस काम के लिए आप अपना गोल सेट करके बैठे हैं, जिस काम में आपको सक्सेस चाहिए। तो पहला जो चीज है, जो पहला रिक्वायरमेंट है आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंसिस्टेंसी। पहले क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। सेकंड रिक्वायरमेंट इज
परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या है? परसिवरेंस का मतलब होता है, बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम काम तो करना चाहते हैं, हमने गोल भी सेट कर लिया, हम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिन करते हैं, 3-4 दिन करते हैं, उसके बाद हम रुक जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी न्यू ईयर क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत लोगों ने अपना रेजोल्यूशन भी लिया होगा कि बहुत लोगों का रहता है कि इस साल 1 तारीख से मैं जिम ज्वाइन करूंगा या एक्सरसाइज करूंगा। ये सभी का रहता है। किसी ने ये रेजोल्यूशन लिया हुआ है? किसी ने ये रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि मैं इस साल बिल्कुल एक्सरसाइज करूंगा? कोई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो बहुत सारे लोग, हम सब ये करते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं और जिम ज्वाइन कर जाते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता खत्म होते होते हमारा फोकस उस रेजोल्यूशन से हट जाता है, हम और नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, अब टाइम नहीं हो पा रहा है, ये सब बहाने देके हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन सक्सेस अगर इस तरह से आप जाएंगे कभी नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंसी चाहिए, साथ ही साथ परसिवरेंस चाहिए कि जहां आप सोच रहे हो कि मैं आप नहीं कर सकता, वहां से आपको और काम करना जरूरी है। आप गिव अप नहीं कर सकते। जब आप गिव अप कर देंगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको गिव अप नहीं करना है। और तीसरा चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी भी चीज को टालने की आदत। हमारे में होता है, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। आज अगर मान लो किसी को कोई ये देना है, कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा, कल नहीं करता हूँ, परसों कर लूंगा। इस तरह से हम उसको डिले करते जाते हैं, और जो लोग डिले करते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमें ये जानना है कि हम कंसिस्टेंस कैसे हुए, हमारे अंदर परसिवरेंस कैसे आए, और तीसरा चीज, हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कैसे रोक सकते हैं। आज के सेशन में मैं इन तीनों के बारे में एक एक रूल्स बताऊंगा मैं आपको, और उन रूल्स के बेसिस पे आपको पता लगेगा कि क्यों ये बहुत जरूरी है, क्यों इन चीजों का जरूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। So today I will be sharing with you 3 rules to achieve success. 3 rules for success are: first is the 1% rule, second is the 40% rule, and third is the 5-second rule. ये 3 रूल जब ये सेशन खत्म होगा, ये 3 रूल के बाद आपको पता रहेगा कि कोई भी आदमी जब सक्सेसफुल होना चाहता है, क्यों ये रूल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इस रूल्स के पीछे का लॉजिक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग 1%। ये 1% रूल है आपके कंसिस्टेंसी के लिए। अगर आपको कंसिस्टेंसी अचीव करनी है तो 1% रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में ये आता है कि हम सब बात तो जरूर करते हैं कि कंसिस्टेंसी चाहिए, कहीं कंसिस्टेंट होना है हमें, लेकिन रीजन क्या है, क्या हो जाएगा अगर मैं किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ चीजें कर रहा हूँ, कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो उससे मेरा फायदा क्या होगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, जब वही एग्जाम्पल मैं जिम वाला लेता हूँ, मान लो आप पहुंच गए जिम में, एक्सरसाइज करना स्टार्ट, पहला दिन आपने एक्सरसाइज किया, पहला दिन आप घर आके देखोगे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगी। दूसरे दिन आओगे एक्सरसाइज करोगे, दूसरे दिन घर आके देखोगे आपको दूसरे दिन भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगी। इसी तरह से 1 हफ्ते बाद भी आपको कोई चेंजेस खास नहीं दिखेंगे, 2 हफ्ते बाद भी कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। आपको चेंजेस दिखना कब स्टार्ट होंगे? 6 महीने बाद। तो आपके बॉडी में चेंज आने के लिए 6 महीने का एटलीस्ट आपको टाइम चाहिए। अगर आप ये सोचोगे फर्स्ट डे की अब चेंजेस नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूं, देन आप अपना जो गोल आपने सेट किया वो अचीव नहीं कर पाओगे। और यही रूल अभी इसमें बताएगा कि क्या होता है 1% रूल, क्या अगर हम 1% रूल फॉलो करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है। बेसिकली 1% रूल क्या होता है उससे पहले जाने, ये 1% रूल दिया किसने। 1% रूल इज गिवन बाय जेम्स क्लियर। ये रूल दिया गया है जेम्स क्लियर नाम के एक ऑथर ने। जेम्स क्लियर की एक बुक है जिसको बोलते हैं एटॉमिक हैबिट्स। बहुत ही मानी जाने वाली बुक है हैबिट्स डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों में से किसी ने शायद पढ़ा भी हो। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक में उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे फंडेज दिए हैं किस तरह से हमें हैबिट डेवलप करनी चाहिए, क्या तरीके हैबिट डेवलप करने के। तो उन्होंने इसी बुक में एक रूल दिया है 1% रूल। अब ये 1% रूल बोलता क्या है? 1% rule says if you get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better by the time you are done. क्या बोलता है? अगर आप किसी भी चीज में 1% बेटर होते जाते हो रोजाना, ठीक है, तो आप एंड ऑफ द डे उसी चीज में 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। और इसको दिखाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत सारे कैलकुलेशन किए और उनको एक इस तरह का ग्राफ मिला।
जिसको बोलते हैं द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। यहाँ ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने यहाँ नीचे की तरफ जहाँ पे अपना एक्स एक्सिस रहता है वहां पे उन्होंने टाइम जोन रखा हुआ है, और वाई एक्सिस में आपका इंप्रूवमेंट या डिक्लाइन की बात रखी हुई है। तो आप देख रहे होंगे 1% बेटर एवरी डे, उसको कैलकुलेट किया हुआ है 1.01 टू द पावर 365 इक्वल्स टू 37.78 टाइम्स आप बेटर हो जाते हो। मतलब अगर आप एक चीज पे, किसी भी चीज पे आप रेगुलर काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो और रेगुलर बेटर होते जा रहे हो, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर में, मतलब एक साल खत्म होते होते 365 डेज के अंदर आप उस पर्टिकुलर चीज में 37 टाइम्स बेटर हो जाओ। अब ये कैसे दिमाग में आ रहा होगा बहुत लोगों की कि ये कैसे आएगा हमारे सक्सेस के फंडे में। एक चीज याद रखना, सक्सेसफुल कौन होते हैं? सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो भीड़ से अलग हट के निकल जाते हैं। अगर एक भीड़ जा रही है और भीड़ एक ही जगह पे पहुंच रही है और सेम टाइम पे सब पहुंच रहे हैं, तो किसी को आप सक्सेसफुल नहीं बोलोगे। जो उस भीड़ में सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको आप सक्सेसफुल बोलोगे, ठीक है? जो उस भीड़ में सबसे पहले पहुंचेगा वही सक्सेसफुल होगा। आप अगर आपको उससे पहले पहुंचना है तो बाकी ग्रुप से आपको किसी न किसी चीज में बेटर होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 1% रोज बेटर बन के 1% रोज कंसिस्टेंट हो, अगर किसी चीज में 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो, तो सोचो कि आप उस ग्रुप से 37 टाइम्स पहले उस चीज को अचीव करो। और अगर आप 37 टाइम्स उसको पहले अचीव करोगे, देन आप उस फील्ड में सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन अगर आप उसी समय जब बाकी लोग अचीव कर रहे हैं उसी समय पे आप अगर अचीव करते हो, तो अल्टीमेटली आपको 99 वेटिंग है, कोई सक्सेसफुल मानेगा मेरे को। सक्सेस वही होता है जब आप लोग जिस चीज को बहुत देर में अचीव करें उसको बहुत जल्दी अचीव करते हैं। अभी जैसे अभी हाल ही में इलॉन मस्क का न्यूज में आया था कि वो अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अब जिस एज में उन्होंने ये सब अचीव किया तभी जाके उनको हम सक्सेसफुल मान रहे हैं। मान लो दुनिया में सभी लोग उन्हीं के जितना पैसा रखते तो शायद हम उनको सक्सेसफुल मानते ही नहीं। वो उनसे बेटर थे, उनसे पहले पहुंच गए, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गए। तो यही चीज बोल रही है 1% रूल कि अगर आप किसी भी चीज में बेटर होना चाहते हो तो रोज 1% बेटर हो जाओ, रोज कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम करते रहो। एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे उस चीज में, और आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे, आप 37 टाइम्स जल्दी लोगों से अचीव करोगे। और आपके लिए सक्सेस का पहला नंबर है जो कि है 1% रूल। आई होप 1% रूल आपको समझ आया होगा। 1% रूल क्यों हमें कंसिस्टेंसी चाहिए ये आपको समझ आ गया होगा। पहला जो फंडा था मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्यों हमको कंसिस्टेंट होना है। जब भी आपके दिमाग में ये आया कि कंसिस्टेंट क्यों होना है, तो आप इस रूल को फॉलो करना, इस चीज को याद रखना कि अगर आप 1% बेटर होते हो दिन में तो 37 टाइम बेटर हो जाते हो पूरे साल। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, 2 दिन पढ़ने से नहीं होगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो आप एंड ऑफ द ईयर बाकी बच्चों से 37 टाइम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये पहला रूल है। अब आते हैं That's why consistency matters to be successful, because if you are consistent, you will be 37 times better than others. Only if you are getting 1% better every day. सिर्फ 1% बेटर होकर अगर आप चल रहे हो किसी भी फील्ड में, आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। इसीलिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है टू बी सक्सेसफुल। अब आते हैं सेकंड रूल, दैट इज 40% रूल, दैट इज फॉर अचीविंग परसिवरेंस। परसिवरेंस होता है जब आप कोई चीज कर रहे हो, आप लगे हुए हो, पूरी मेहनत कर चुके हो और आपने उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा दी, लेकिन अब आप थक चुके हो, आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और आप ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, मतलब अब आप गिव अप कर दोगे, आपको लग रहा है कि अब तो मैं नहीं कर सकता, अब मैं गिव अप करूंगा। तब काम आता है 40% रूल। क्या है 40% रूल, उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं इसको दिया गया है। 40% रूल इज गिवन बाय डेविड गॉगिन्स। किसी को पता है डेविड गॉगिन्स कौन है? कोई रिप्लाई करेगा? किसी को पता है डेविड गॉगिन्स कौन है? World's toughest man. Is the world's toughest man. डेविड गॉगिन्स एक एक्स नेवी सील ऑफिसर है। नेवी सील वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री का फॉर्म है नेवी सील। उसके एक्स नेवी सील ऑफिसर हैं वो। उनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने 4000 से ज्यादा पुलअप्स किए हैं विद इन 24 आवर्स एंड ही इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव। दुनिया के सबसे टफेस्ट मैन है।
बहुत सारे डिफिकल्ट रेसेस उन्होंने कवर किए हुए हैं, तो इनका रोल है 40%। और इन्होंने ये रूल दिया है परसीवरेंस के लिए, टिके रहने के लिए, गिव अप ना करने। अब ये 40% रूल है क्या? 40% rule, yeah, 40% rule says when your mind is telling you are 100% done, you are really only 50%. इसका मतलब क्या है? When your mind is telling you are 100% done, you are really only 20%, 40% done. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपका दिमाग बोल रहा है कि अब मैं नहीं कर सकता, बस ये मेरा लिमिट है, इसके आगे मैं नहीं कर सकता, अब मुझे यहाँ गिव अप करना है, उस समय सिर्फ आपका 40% यूज हुआ होता है, आपका 100% यूज नहीं हुआ होता है। उनका मानना है जब हम कोई चीज करते हैं तो हम जिस टाइम पे गिव अप करने वाले होते हैं, जिस टाइम पे हमको लगता है कि अब तो मेरे से नहीं होगा, उस समय हम सिर्फ अपना 100% जिसको सोच रहे हैं सिर्फ 40% यूज कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉलेजेस खत्म करके जाते हैं घर, और अभी हमको किसी चीज की पढ़ाई करनी होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है यार कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सारा काम दे दिए टीचर्स, लैब भी हो गया, क्लासेस भी हो गए, ये सब करने के बाद अब मेरे से नहीं होगा। आप घर पहुंचे, आप थक के सो गए या कहीं कुछ घूमने चले गए, कुछ भी, आप मैं नहीं कर सकता ये काम। लेकिन आप कभी सोचो कि अगर यही सिचुएशन में आप घर पहुंचते हो और देखते हो आपके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, घर में किसी का ना हो ऐसा, लेकिन किसी का अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है या कोई किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, तो आप में से मुझे नहीं लगता कोई आदमी ये बोलेगा कि मैं थक गया हूं, अभी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा या अभी मैं उसका हेल्प करने नहीं जाऊंगा। आप जाओगे बिकॉज उस समय आपको आपका गोल आपकी थकान से बड़ा लगता है। हम अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि जब मैं थक गया हूं तो मैं थक गया हूं, अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब आपको दिखता है कि आपके पास और कुछ ऐसा है जो आपको करना जरूरी है, तब आप अपना एनर्जी लाते हो। ये एनर्जी आती कहां से? बिकॉज आप तब तक सिर्फ 40% थके होते हो, 60% टाइम, 60% ऑफ द एनर्जी आपके पास अभी भी बचा होता है। ये है 40% रूल कि अगर आपको लग रहा है जब भी आप कुछ ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं अभी गिव अप कर दूंगा, तो सिर्फ ये याद रखना अभी आपने सिर्फ 40% यूज किया, अभी बहुत कुछ बाकी है एनर्जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके सर। Next time, when you think you are tired and can't do it, remember the 40% rule. That's perseverance. जहां भी आपको लगे मैं नहीं कर सकता, याद रखो the 40%. कि नहीं कैसे नहीं कर सकता, सिर्फ 40% का बात, और करके देखना। आप जहां आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकता हूं, करके देखना आप आगे और 1 घंटा पढ़ लिए रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका दिमाग आपके साथ खेलता है, आपका दिमाग आपको बोलता है नहीं हो गया कुछ अब चुप, और आप वहां मान जाओ, मानना बंद करो, आप सक्सेस पाना स्टार्ट करो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इलॉन मस्क, क्योंकि अभी न्यूज में है तो उनके बारे में बता दूं। वो आदमी का आपका अगर उसके बारे में गूगल करोगे तो वो इवन अपना जो खाना है, जो हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ बैठ के मीटिंग नहीं करता है। उस आदमी का सक्सेस का रीजन ये है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो गिव अप नहीं करता है। वो 40% के साथ ये नहीं बोलता कि मैं नहीं कर सकता, वो करता है, और जब वो करता है आज उसका रिजल्ट उसको दिख रहा है। ठीक है, तो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक यू आर टायर्ड एंड कांट डू इट, रिमेंबर द 40%। ये है परसिवरेंस के रूल। अब परसिवरेंस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, लेकिन कभी भी आप ये चीज फील किया हो कि सक्सेस जब भी हम बात करते हैं, सक्सेस किसी भी फॉर्म का हो, उसको अचीव करने के लिए हमको काम तो करना पड़ेगा ना। मुझे अगर मेरे क्लास में टॉप करना है, या मुझे जीपैड निकालना है, या मुझे नाइपेड निकालना है, या मुझे कोई भी ऐसा फील्ड में जाना है वो अभी तक कोई अचीव नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम बिना काम के आप अचीव करोगे नहीं, घर में बैठ के सोच के नहीं अचीव कर सकते। मुझे मार्क्स लाने हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे कोई चीज अचीव करनी है तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरह से है कि उसको आराम पसंद है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरह से बना हुआ है, उसको काम नहीं पसंद है। अगर आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट नहीं करोगे तो आपको काम करना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को इसी के बारे में जो नेक्स्ट रूल है, इसी के बारे में है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपका ब्रेन आपको रोकता है। कितने लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपने अभी तक स्टूडेंट लाइफ में अभी तक सोचा होगा कि मैं सुबह जल्दी उठूं? हैं कोई जिन्होंने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और कभी उठ नहीं पाए? यस सर। Yes, sir.
ओके, आप लोगों ने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मैं उठ नहीं पा रहा। होता क्या है? होता ये है, जब आप उठते हो सुबह, आपको आपने डिसाइड किया पिछले रात कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, ठीक है, आपने डिसाइड किया मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। सुबह जिस टाइम पे आपको अलार्म लगाना था, आपने मान लो 5 बजे 6 बजे जो भी आपके लिए जल्दी है, उस समय आपने अलार्म लगाया, अलार्म बजा और आप जस्ट उठने वाले, आपका नींद ऑलमोस्ट खुल गया है, आपका दिमाग अभी, जैसे आपका नींद खुलता है, अगर आप इस बेड से नहीं उठते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? ठीक है ना, आज से नहीं, कल उठता है, अरे आज तो संडे है, आज क्या होता है, ठीक है, ज्यादा काम नहीं, मैं और आधा घंटा सो जाऊंगा तो भी चलेगा, और 15 मिनट सो जाऊंगा तो भी चलेगा। हुआ है कुछ लोगों के साथ ऐसा? हुआ है? यस सर, बहुत बार यस सर। बहुत बार हुआ है कि कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, अल्टीमेटली में देखते हैं कि नहीं, ठीक है, आज कल या थोड़ा 15 मिनट बाद बात कर लेता हूँ, 16 मिनट बाद बात लेता हूँ, 10 मिनट बाद बात, ये चलता है। तो इसी के लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं द 5 सेकंड, जिसमें हम प्रोक्रास्टिनेशन को रोकेंगे। कोई भी चीज को टालने की जो आदत है हमारी कि आज हम कल कर देते हैं, कल नहीं परसों कर देते हैं, ये जो टालने की आदत है उसको हमको रोकना है। इसके लिए है द 5 सेकंड रूल। अब ये 5 सेकंड रूल है क्या? पहले 5 सेकंड रूल दिया गया है। 5 सेकंड रूल is given by Mel Robbins। कोई जानता है मेल रॉबिन्स? मेल रॉबिन्स जो है, he is an author, ठीक है, जिन्होंने ये बुक भी लिखी है द 5 सेकंड रूल। he is अमेरिकन टेलीविजन होस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो इन्होंने ये रूल दिया है द 5 सेकंड रूल। इनका रूल बोलता क्या है? इनका रूल बोलता है if you have an instinct to act on a goal, you must physically move within 5 seconds और ब्रेन वेट करेगा। उनका मानना है अगर आपका इंस्टिंक्ट कर रहा है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे कुछ करना है, कुछ गोल आपने सेट कर दिया, मान लो पढ़ना है या मुझे सुबह उठना है, आपने एक गोल सेट किया हुआ है, अगर आपका इंस्टिंक्ट बोलता है मुझे उठना है या पढ़ना है, जो भी आपने इंस्टिंक्ट आपका बोल रहा है आपके गोल के लिए, तो इंस्टेंटली आप उस फिजिकली मूव करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 5 सेकंड के अंदर मूव नहीं करोगे तो आपका ब्रेन उस इंस्टिंक्ट को खत्म कर देगा। इसको मैं समझा दूं आपको, होगा ये कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है, आप सुबह अलार्म लगा, आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है मुझे उठना है, आपका गोल सेट है सुबह जल्दी उठना है, इंस्टिंक्ट बोल रहा है अभी उठना है। लेकिन अगर आप 5 सेकंड के अंदर मूव नहीं करते, अगर आप 5 सेकंड के अंदर मूव नहीं करते फिजिकली, उस जगह से उठते नहीं हो, तो आपका ब्रेन आपको 1000 ऐसे रीजंस दे देगा जिसके कारण आपको नहीं उठना चाहिए और आप नहीं। होता ये है कि अगर आपने थोड़ा भी डिले कर दिया, ठीक है, आपने थोड़ा भी डिले कर दिया, आपने थोड़ा भी वेट कर गया, तो होगा क्या, आपका ब्रेन इतना चालाक है, वो आपको बताएगा देख आज उठ के क्या होगा, कल से कर, आपको रीजन देगा। और जब आपके पास ब्रेन के पास रीजन आ जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करता। लेकिन अगर आप उन 5 सेकंड के अंदर उठ जाते हो और मूव कर जाते हो तो आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाएगा रीजन देने से और वो लग जाएगा उस फिजिकल एक्टिविटी में। मान लो आप पढ़ने के लिए लिखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, जैसे आपने सोचा मुझे आज पढ़ना है, जैसे ही सोचा उसमें आप उसी टाइम पे आपको गिनना है 5 4 3 2 1, 5 सेकंड हुआ और आपको मूव कर जाना है आपके स्टडी टेबल के पास या आपके बुक्स के पास या कुछ। जैसे आप मूव करोगे तो आपका ब्रेन अब अलाइन हो जाएगा उस चीज से कि हाँ अभी मुझे बुक पढ़नी है या यहाँ स्टडी टेबल पे मैं पहुंच गया, अभी मुझे लिखना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप मूव कर गए, आप अब मूव कर चुके, अब आप नहीं रुके, बिकॉज आपका ब्रेन के साथ आपने टाइम ही नहीं दिया कि आपको रीजन, तो आप वो काम कर लो। आप कभी भी करके देखना, इस रूल को अप्लाई करके देखना, कभी भी जहां पे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मैं आज नहीं करता, लेकिन उसको जैसे दिमाग में आ गया आज करना जरूरी है, इंस्टेंटली उसको काम पे लग जाओ। कोई फिजिकल एक्टिविटी उठा लो, टेबल तक पहुंच जाना, उठ के जूते पहन लेना अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, या बुक्स उठा लेना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर लेते हो उस 5 सेकंड के अंदर, तो आपका ब्रेन भूल जाता है कि उसको रीजन देने हैं आपको कि क्यों नहीं करना, और आपको अगर ब्रेन रीजन नहीं देगा तो आप आराम से मूव करोगे। ये है आपका 5 सेकंड। ये 3 रूल्स जो मैंने आपको बताया, द 1% रूल, द 40% रूल एंड द 5 सेकंड रूल, ये 3 रूल्स को अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो इसका गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको रिजल्ट्स तो दिखेंगे। बिकॉज 1% रूल आपको लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देता ही देता है। 1% रूल लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ देता है, जो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में रिजल्ट देता है, मतलब आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अभी आज देख रहे हैं बहुत छोटा सा काम है यार, इसमें क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट
देगा। उसी तरह से आपका 40% रूल आपके परसिवरेंस के लिए काम करेगा एंड आपका 5 सेकंड रूल आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकेगा। अगर आपको ये सेशन एक टाइम आप कभी ऐसा फील करते हो प्रोक्रेस्टिनेशन तो 5 सेकंड रूल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और इसी तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हो तो आप ये YouTube चैनल है मेरा सरस टॉक्स, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ और इसी के साथ ही मैं अपना ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All right. Thank you so much, Saraswati sir. It was really a very informative session for all of us. I hope all the students must be agree with me. Yes, And thank you. with this, yes, and now I request Saraswati sir to please accept our e-certificate with as a token of gratitude from CGSPS Society. Thank you and thank you for this certificate. It's a pleasure for coming on the platform with CGSPS and sharing my views with the students. And I will be there next time also whenever we will conduct this kind of thing. And one request for the students also कि इस चीज को भूले ना, इम्प्लीमेंट करें। जो भी चीजें मैंने बताई हैं इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट दिखेंगे। भूल जाओगे तो फिर कोई आया कोई चला गया हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेशन भी सुनो, जो भी सीखने को मिलता है सीखो। ये सीजीएसपीएस के साथ जुड़े रहो, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Sir, please stop presenting. I want to let students see the certificate also. ओके। Please kindly accept, sir. This will be sent to you through the mail also. Please accept the e-certificate to Chhattisgarh Society of Pharmaceutical Sciences. Thank you, thank you. Thank you for this. Thank you, sir. Thank you. So now moving ahead towards the session, we have with us our next speaker, Dr. Vikas Chandrakar sir. Dear students, passion is followed by when hard work, it always pays off. And one of the such personality of pharma profession is with us today, who not only made his dream true but also set milestone in the field of clinical research. Chhattisgarh Society of Pharmaceutical Sciences truly appreciate your hard work and determination, sir, and take the privilege to bestow sir as Chhattisgarh Youth Icon 2021. Many congratulations, sir, to you from the entire team of CGSPS. So, without taking much of the time, I must respectfully invite our next speaker, Dr. Vikas Chandrakar sir, for his deliberation. Over to you, sir. I'll share my slides now. Is it visible? Anshita, madam? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Oh, thank you. Oh.
Because sir, just minimize it. Yeah. This is slide. I will start. I think it is visible, no? Yes, yes. So thank you very much, CGSPS, for giving me opportunity to uh, say my views and our journey in the area of hello. Is it audible? Yes, sir, it is audible. Okay, yeah, sorry. Uh, so just today is the National Youth Day, and I want to wish everyone happy National Youth Day, and thanks CGSPS to express my view in today and to show our success story. So I want to start my this views from this quote which is given by Swami Vivekananda. Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. So definitely, whenever you take any risk, then it is not necessary that you will get success. कभी भी ऐसा नहीं होता है. आप अपनी लाइफ में कुछ भी रिस्क लो, कोई भी काम करो, आप सिर्फ एक हाइपोथेसिस कर सकते हो कि हाँ ये हो जाएगा, ये सही होगा, या ये मैं जो कर रहा हूँ तो उसमें ये सक्सेस मिलेगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस आपको मिले. तो अगर वो सक्सेस नहीं भी मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि स्टिल आपके पास टाइम है, आप फिर से कुछ नया कर सकते हो, और जो आपने किया है आप उससे कुछ सीख सकते हो. तो वो सीख के आप फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो. जरूरी नहीं है ये कोई अपना लाइक स्टार्टअप करो, इनोवेशन करो, अब जो भी करो, इवन कहीं पे भी जॉब भी आप कर रहे हो, तब भी आपको कुछ कुछ नई चीजें, कुछ कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो. देन दिस इज अबाउट लाइक आप जानते हो ये सभी फेमस कंपनीज हैं, एप्पल, गूगल, अमेजोन, हार्ले, डिज्नी, मेटर एक टॉय की कंपनी. तो ये सब कंपनीज देखो कैसे प्लेसेस से स्टार्ट हुए. जस्ट लोगों ने सोचा, उन्होंने एक छोटे से प्लेस पे वो बैठना स्टार्ट किए, और उसके बाद धीरे धीरे उनको सक्सेस मिला, और आज ये सभी कंपनीज बहुत वर्ल्ड फेमस है, और ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और कुछ कुछ अपने आप को ये अपग्रेड करते जा रहा है. इसका मतलब ये भी है कि जब भी इवन आप नोकिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको अपग्रेड करना है और आगे बढ़ते रहना है. आप अपने आप को जिस टाइम पे अपग्रेड करना बंद कर दोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. जैसे हम एजुकेशन में ही आप देखते हो, आप फर्स्ट ईयर भी फार्मेसी में हो, आप पढ़ते हो, फिर सेकेंड ईयर में आप पहुँचते हो, फिर सेकेंड ईयर में नए दूसरे कोर्स एड हो जाते हैं जो एड ऑन होते हैं आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स के ऊपर. मतलब फर्स्ट ईयर आपका बेसिक हो जाता है, तो ये एड ऑन होता जाता है. सेम हमको अपनी लाइफ में भी हर स्टेप में अपने आप अपग्रेड करना है और ऐड करते रहना है नई नई चीज़ों को, और आसपास क्या चल रहा है उससे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है. सक्सेस अगर आप देखें तो ये बहुत ही एक पिक्चर सभी लोगों ने देखा होगा. इसमें आप देखो सक्सेस हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यस सक्सेस है, बट उसके नीचे जो रिस्क है, फोकस है, गोल्स है, परसिस्टेंस, फेलियर, सेक्रीफाइस डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ. अगर आप कुछ पाना चाहोगे तो कुछ कुछ खोना पड़ेगा. तो खोना हो सकता है थोड़ा आप जो एंजॉय कर रहे हो आप अपने लाइफ में थोड़ा कम करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा. जब आपको हार्ड वर्क करोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, तो ऑटोमेटिक फिर आपको सक्सेस मिलेगा. देखो हर जगह पे हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हमको आसानी से मिल जाए, तो वो कभी होगा नहीं. कंपटीशन हर जगह पे है, और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम कुछ बहुत ही इनोवेटिव करें, बहुत ही अलग करें, कुछ हट के कर रहे हैं, बहुत ऐसा यूनिक काम करें कि जो कोई ना किया, तो वो पॉसिबल नहीं है. आप किसी भी फील्ड में जाओ, चलो ठीक है आप 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, आप एक क्लास में, आप कुछ अलग सोच सकते हैं, लेकिन आप अगर अलग सोच रहे हैं तो आप सिर्फ वो 99 लोगों से अलग सोच.
बट एक दूसरे कॉलेज में भी वैसे ही 100 लोगों के बीच एक स्टूडेंट है जो आपके जैसा सोच रहा है। सेम ऐसा ही होता है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड पे जाओ, कहीं आप बहुत ही यूनिक आप कर पाए वो नहीं है पॉसिबल। आप जो सोच रहे हैं हो सकता है कोई और भी सोच रहा होगा, डेफिनेटली कोई और सोच रहा होगा। तो ये नहीं कि मैं ये काम करने वाला हूँ और वो बंदा तो ऑलरेडी कर दिया, या वो ऑलरेडी कर रहा है, या वो भी सेम सोचा है तो रहने देता हूँ, मैं ये नहीं करता। ये थिंकिंग को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपटीशन हर जगह पे मिलेगा आपको, सेम थिंकिंग वाले लोग भी हर जगह पे मिलेंगे, बट वहाँ भी उस लेवल पे जाने के बाद भी आप कुछ अलग चीजें करोगे जिससे आप आगे बढ़ते जाओगे और दूसरों से बेटर पोजीशन पे पहुंचोगे, बेटर सक्सेस होगी। अब आप मेडिकल स्टोर देखो, हम मेडिकल स्टोर कहीं भी स्टार्ट करते हैं, मेडिकल स्टोर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो 3 मेडिकल स्टोर हैं, तो यहाँ पे एक और मेडिकल स्टोर रखेंगे तो कहाँ चलेगा। तो आप एग्जांपल ले लो, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने आप जाके देखो, वहाँ पे 10-15 मेडिकल स्टोर्स लाइन से रहते हैं और सभी चलते हैं, बट उनमें से कुछ शॉप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। डेफिनेटली वो कुछ यूनिक कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, और वो 10 मेडिकल शॉप होने के बाद भी 11वां मेडिकल शॉप भी खुलता है वहाँ पे। तो ये है, कंपटीशन हर जगह आपको मिलेगा, बस ये है कि आपको डरना नहीं है कि इसमें भी कंपटीशन है, तो वो नहीं है हम कहीं और चलते हैं, किसी और फील्ड पे चलते हैं, कुछ और करते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमने स्टार्ट किया। हेलो, हाँ सर। सर बस ठीक ठीक ठीक, कोई परेशानी नहीं सर। आपका तो वैसे ही भी, इसलिए मैंने बोला था अंशिता को कि आप सर्टिफिकेट जो है वो तुरंत वहीं पे ही दिखा देना, ताकि आप बीच में अगर लेफ्ट कर गए किसी चीज़ के लिए तो ऐसा मिस नहीं होगा लास्ट तक के लिए। सो ठीक ठीक। अरे बेहतरीन था यार, मतलब एज मैं यू तो कैन सी, आप देख आपका सकते पीपीटी हो, एक्चुअल में मैं सिर्फ ये देखा था कि आपको 1%
कहीं ना 40% कहीं 5%। कितना स्टेप बट भी एक्सप्लेन लेना जो है। आप किए हैं ना, जब आप खुद आगे एकदम बढ़ोगे भोकाल तभी लोग आपको भोकाल सपोर्ट भोकाल। करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन मैंने भी किया। नहीं नहीं नहीं, पुलिस बहुत अच्छा ऑफिसर था। एक बस वो बैठे मतलब हुए हैं, कहीं भी एक ऐसा लगा नहीं पॉलिटिशियन कि है आप में वो नहीं वो है, चला मतलब गया। यू कैन स्पीक एक्चुअली। दूसरी कहीं भी तरफ उसको प्लेटफॉर्म में या किसी उसमें जो है ना, लार्जर ऑडियंस के सामने ऑल्सो यू कैन गो। दूसरी तरफ वो दूसरी गाड़ी में बैठ के चला गया। फिर ठीक एक ठीक छोटा सा बच्चा चलो ठीक है, आया, अपन और बाद में वो डिस्कस ड्राइव करते हैं, अभी किया, चल ही उसने रहा है मीटिंग, कोशिश की है हटाने। ना। इवन दो गुड। हम भी जानते हैं कि वो नहीं हटा पाएगा, वो तो उसको भी पता है, वही लेकिन तो उसने जंजीर जस्ट है। कोशिश किया। जैसे ही वो कोशिश करने है के ना, लिए आगे बढ़ा, इसीलिए तो लोग ठीक उसको है। सपोर्ट ओके सर, करने लगे। थैंक्स यार, छोटे थैंक छोटे यू। बच्चे और आए हेल्प करने के लिए। उसके बाद सभी लोग आए और वो जो पेड़ है वो साइड में कर दिया गया। तो ये होता है आपकी लाइफ में भी, जब तक आप खुद स्टेप नहीं लोगे तब तक कोई और भी आपका हेल्प नहीं करेगा। और हाँ, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हो सकता है आपको पीछे करें। आपके पीछे करें इन द सेंस कि हो सकता है आपका मजाक उड़ाए या आपकी जो थिंकिंग है, आपके थॉट्स जो है वो उससे वो मैच नहीं करता उनके, इसलिए उनको लगता है कि ये नहीं कर पाएगा। तो वो सबके कारण आपको पीछे नहीं रहना है, आपको बस अपना आगे बढ़ते रहना है। तो ये जस्ट अब मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। लाइक मी एंड माय पार्टनर कीर्ति कुमार पटेल, उनका साथ संजात है। हम लोग बिलासपुर के बिलासपुर से हैं। कीर्ति बिलासपुर के पास एक गांव से है और मैं एक्चुअली बेसिकली हूँ पंडरिया से, इधर कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, आगे बढ़े। उसके बाद फिर जब बी फार्मेसी, अब सीधे बी फार्मेसी में आता हूँ, 2009 में बी फार्मेसी किया दुर्गा घासीदास से मैंने। उसके बाद फिर 2012 में फार्म डी किया कोयम्बतूर से। ये जो बी फार्मेसी जो है फार्म डी कोयम्बतूर को करने गए तो उस टाइम पे बहुत ही ऐसी चीज़ें थी कि एक जस्ट छत्तीसगढ़ से निकल के वो भी सीधे साउथ, एक वो भी कोयम्बतूर टिपिकल साउथ तमिलनाडु, बहुत अलग कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद 2012 में वहाँ से फार्म डी कंप्लीट किया। उसके बाद अब जॉब ढूंढने की बारी है। जॉब तो फिर आप जानते ही हो कि आसपास छत्तीसगढ़ में उतने जॉब के ऑफर्स थे नहीं, तो उसके लिए भी फिर बाहर निकलना पड़ा। तो फिर मैं आया फिर वडोदरा गुजरात और यहाँ पे जॉब छोड़ी। सिमिलरली कीर्ति ने 2012 में रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बी फार्मेसी किया। उसके बाद सेम आगे क्या करें, तो वो फिर एमएससी क्लिनिकल रिसर्च करने गया अमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली। 2015 में उसने अपना एमएससी क्लिनिकल रिसर्च कंप्लीट किया और 2015 में फिर वो भी जॉब करने आया बड़ोदरा में, क्योंकि अब मैं टच में थे पहले से। तो 2015 में जॉब करने आया बड़ोदरा। उसके बाद फिर हम लोग बैठे 2015 में कुछ प्लान किया कि क्लिनिकल रिसर्च जो है वो छत्तीसगढ़ में उतना स्कोप मतलब इफेक्ट हुआ नहीं है, तो क्यों ना हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो हमने अपना पहला जो क्लिनिकल रिसर्च का वर्क स्टार्ट किया वो रायपुर में किया और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई 2015 में, और इसका नाम रखा हमने केवी क्लिनिकल रिसर्च। तो केवी क्लिनिकल रिसर्च में 2015 में स्टार्ट किया। तो शुरू के जो 2 साल थे वो बहुत क्रूशियल थे, क्योंकि आप जब भी कुछ नया स्टार्ट करोगे और कुछ काम पाना चाहोगे तो बहुत टफ होता है। लोग सीधे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका पुराना रिकॉर्ड कुछ नहीं है। तो जो भी था कैसे भी कन्विंस किया हमने और रिसर्च के स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट किया। उसके बाद कुछ ट्रायल्स हुए, बट बहुत लॉस हुआ। मतलब जितना मैन पावर है वो सब भी मतलब मैनेज करना बहुत टफ था उस टाइम पे। 2017 मिड 2017 तक बहुत ही हालत मतलब बिल्कुल भी खराब हो चुकी थी। ऐसा था कि अब छोड़ो रहने दो, फिर से कुछ जॉब वॉब देखते हैं। बट लक भी थोड़ा सपोर्ट किया और थोड़ा सा हमने पेशेंस रखा कि हाँ थोड़ा और वेट करते हैं। उसके बाद फिर हमको बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। बड़ी बड़ी कंपनी से फिर काम आना स्टार्ट हुआ। फिर हमारा एक रिकॉर्ड बना कि हाँ ये लोग काम एक अच्छा करके देते हैं।
उसके बाद 2015 है, फिर 2018 में हमने एक और कॉर्पोरेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना कंपनी रजिस्टर कराया है। खुद की ऑफिस ली हमने रायपुर छत्तीसगढ़ में। अभी उसके बाद फिर अभी रिसेंट 2021 में हमने अपना लेबोरेटरी स्टार्ट किया है। 21 में हम अपना अहमदाबाद में, मतलब मैं यहाँ गुजरात में ही हूँ, तो यहाँ भी हम अहमदाबाद में अपना एक ऑफिस प्लान कर रहे हैं, तो और बड़े लेवल पे काम करना चाहता है। ये जो 2015 से 21 में, कहीं ना कहीं 2015 में जो हमने सोचा, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ कुछ करना चाहें तो आगे कर लेंगे, तो जस्ट स्टार्ट करके देखते हैं, करते तो हमें फेलियर मिलेगा तो जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा एक थिंकिंग था। क्योंकि उस टाइम पे हमको पैसे थोड़े लगाना थे और टाइम ज़्यादा था। तो एक ऐसा टाइम था कि रात के 2-2 बजे तक हम लोग पूरा सिर्फ प्लानिंग करते थे, क्लाइंट्स को कॉन्टेक्ट कैसे करना है, पूरे टाइम उस पर ही भिड़े रहते थे। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस रखा हमने, बट फिर भी बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशेंस लूज भी हुआ। मतलब कि आगे अब क्या करें, कुछ लग नहीं रहा है कि आगे कुछ सक्सेस मिलेगी, बट जो एक है कि लोगों का सपोर्ट भी मिलता था। फिर धीरे से कुछ ऐसे नोन पर्सन आए जिनको और ट्रस्ट हुआ कि हाँ इनका काम अच्छा है और ये लोग ऑनेस्टी से कर रहे हैं, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी स्टार्ट किए। तो यही है कि आप अगर कुछ भी सोच रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट वो सक्सेस मिल जाएगा। अभी हमारा और प्लान चल रहा है कि आगे हम दूसरे कंट्रीज में भी अपने ऑफिसेज स्टार्ट करें और दूसरे लोगों से और टाइप्स करें दूसरे कंट्री के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। तो उससे क्या होगा कि इंडिया में हमको, अगर इंडिया में हमको कोई भी काम करना है तो फिर वो रिसर्च का कॉन्ट्रैक्ट हमको दे। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में सिर्फ हम लोग ही हैं। जैसे आप देखो, केवी क्लिनिकल रिसर्च साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 100 साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इंडिया में, और हम लोग कई ऐसे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी हमको अब वर्क ज़्यादा मिलने लगा है। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं कि आप जस्ट स्टार्ट करके आप छोड़ दो, उसको करना है और परफेक्शन रखना है। जो नोकिया का एग्जाम्पल किया ना, आप देखो अभी नोकिया का मोबाइल कोई लेता नहीं। नहीं तो एक हमारा टाइम था जब बोले तो 10 साल पहले सिर्फ नोकिया, सभी के हाथ में आपको नोकिया ही दिखता। तो अगर वो अपडेट अपने आप को करते और कंसिस्टेंसी रखते तो अभी भी वही मोबाइल सबसे ज़्यादा चलता, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्विस स्टेशन और उनका ब्रांडिंग मार्केटिंग ऑलरेडी हुआ रहता है। तो ऐसा ही है, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो आपको परफेक्शन रखना ही पड़ेगा। जिस टाइम पे आप फेल हुए तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स वो आपका बिजनेस हो जाएगा, फिर आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो जो हमने जो देखा वो है कि आप डिसिप्लिन रहो, पोलाइटनेस कभी मत छोड़ो। क्योंकि ये गलती हम हमेशा करते हैं, कहीं भी जॉब करें या बिजनेस करें, तो पोलाइटनेस है मैक्सिमम लोग इसको लूज कर देते हैं। तो जैसे ही आपका नेचर चेंज हुआ, आप जैसे ही आपके बिहेवियर चेंज हुआ, ऑटोमेटिक आप डिक्लाइन हो जाओगे। और कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस भी अपना लूज नहीं करना है। तो बस एक छोटा सा एक जर्नी है, बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको आगे आप भी अगर कुछ करो तो आप, ये था विकास राज चंद्राकर से, डॉक्टर विकास राज चंद्राकर। अभी भी हम पढ़ाई करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नई डिग्रीज लेते रहते हैं। सिमिलरली मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, मैक्सिमम आप स्टूडेंट्स हैं, ये टाइम है, जितना लर्न कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, आपको सीखना है। और उससे ही आप आगे सक्सेस हो पाओगे, सक्सेस ले पाओगे। अगर आप सीखोगे नहीं, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे, होता है हम लोग जब बी फार्मेसी या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारा थिंकिंग ये होता है कि बस
पढ़ना है, मतलब पास होने के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि 10 पेज 15 पेज लिखें और फिर उससे मार्क्स मिल जाएगा। पर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप आगे उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और फार्मा इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, इतने लाइन्स हैं, एक एक लाइन पे आप आगे बढ़ो, सही फोकस करके तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो बस यही है, हम छत्तीसगढ़ से जनरली ये सोचते हैं, या तो किसी भी टिपिकल विलेज, चाहे यहाँ गुजरात में भी जैसे गाँव में चलेगा या छोटे टाउन्स में चलेगा, लोग आगे बढ़ने के लिए डरते हैं। तो डरना नहीं है, आपको आगे आना है, अपने आइडियाज़ के साथ आओ। इवन जॉब करने के लिए बाहर निकलो, बेंगलोर, दिल्ली, कहीं भी आप बाहर निकलो, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक जो थिंकिंग हमारी रहती है कि नहीं बैंक के पास कुछ मिल जाए फिर हम कुछ करें, तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही है। आप बाहर निकलोगे, नो डाउट घर से थोड़ा दूर रहोगे, बट आजकल तो ट्रेवल करना भी बहुत ईजी हो गया है, कहीं भी आना जाना तो बहुत ईजी हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं, एक छोटी सी मेरी जर्नी हमारे चलते हैं आगे। हाँ, एक और चीज़ है जो अभी जो हर किसी को अपने दिमाग में रखना है कि आप जो भी कमाओ, कुछ भी करो, जितना भी सक्सेस मिले, एक जो अपने सोशल एक्टिविटीज़ है, जो दूसरों के लिए कुछ करने का है, उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो इसी नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ NGO स्टार्ट करने का है। तो CGSPS के साथ मिलके हम और आगे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम करना चाहते हैं। तो एक और सक्सेस थोड़ा मिल जाए, उसके बाद एक पार्ट ऑफ अपना इनकम हम एक सोशल वर्क में लगा सकते हैं। तो यही है, जब तक आप सक्सेस नहीं मिलेगा, जब तक आपको इनकम नहीं होगा, तब तक वैसे थिंकिंग भी नहीं आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा खर्च ही चुकाओ। तो ऐसा एक इनकम हो तो फिर दूसरों के लिए भी एक सोशल वर्क में भी हमको इन्वॉल्व करना है। तो बस यही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. I hope the presentation and the motivation motivations given by sir will be very much helpful for all the students, especially for our budding pharmacists who have newly joined the pharmacy profession. The sir has very correctly said that you have to come out of your comfort zone to touch the sky. Thank you, sir, for your. एक्चुअली इसमें मैडम मैं एक और चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि जो जनरली होता ये है, आई थिंक ये सभी हमारे बी फार्मा एम फार्मा के स्टूडेंट्स होंगे ना। जी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, देखो एक जो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी जो हम फोकस करते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमेशा बनी रहे, नो डाउट उसको हमको मेंटेन करना ही है। ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के पूरा जूझ जाओ, करो आप करो, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करना है। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे एंजॉय करते हो, आप मूवीज देखते हो, अच्छी बात है, बट जैसे मूवीज भी देख रहे हो, आप डेली मूवी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कट करना है और इधर भी फोकस रखना है। तो ये भी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो और पूरा भिड़ जाओ, क्योंकि वो जो फैमिली है, जो दूसरे वर्क आप कर रहे हो, वो आपको मेंटल एक पीस देता है, तो और आपको मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा जितना आप रिफ्रेश रहोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Now taking this privilege to CGSPS, I must respectfully present the e-certificate to you, sir, as a bestow from Chhattisgarh Society of Pharmaceutical Sciences. Kindly accept the certificate, sir. We will also mail it to you. Thank you madam। I request Ravi sir to kindly join on this platform and kindly present this e-certificate to sir also. Thank you, Vikas, sir. It's a pleasure to have you on our platform. And along with the team, I present you the 2020 Youth of the Year because you have been the iconic person we have been known so far in the pharmacy field among the youth, and you have achieved a milestone which people only think of.
and it's a people like you who actually make it possible. So once again, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, From ma'am. the entire team of CGSPS, I present my wholehearted regards to each and every student who participated in this entire session. I hope both the session might be enriching to you all. Thank you, Vikas sir, for taking time from your busy schedule and enriching our student and ourselves from your lecture. Thank you, Saraswati sir, for your motivation speaker. Thank you, our President, Dr. Ravi sir. I hope some activity like this will be continued in future also. And thank you, Pragya ma'am. Thank you, Dipen sir. Thank you, all the dignitaries of CGSPS. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am.